after his killer dance moves, he's killing it with Kill. And now he'll be seen in the web series Gyara Gyara. Thank you, Raga, for talking to us, and congratulations for your bad act performance in Kill. Thank you, thank you. I'm not as bad as in real life, though. I am sure, but to be bad on screen and killing it, really killing it. Thank you, thank you, thank you very much. So people die to work in a Karan Johar, Guneet Monga production, and you have been lucky to act in not just one but two. Yeah. So how fortunate do you feel? I feel really fortunate. I feel really blessed because I have been working so hard. It's been 14 years now, for me. When log just people just see your success, like your films and all, but they don't see the hard work behind it. The years and years of training as an actor, years and years of working on your craft, and years of like what you call that tapasya. वो देखते नहीं है, but then suddenly now Kill is a rage, a worldwide rage, and now it's a cult classic suddenly. So now people are realizing, okay, now he can act, and he's good, he's critically acclaimed as an actor now, and that too in a film with Guneet Monga, who is an Oscar winner, and Karan Johar. I mean, the legends of Indian cinema. So I feel really blessed. I'm really happy that I got this opportunity. And I feel really happy that I auditioned for this role, and I feel happy that there is a culture of casting exists in this especially Indian cinema. तो वो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए. अगर ये नहीं होता, casting directors वाला culture नहीं होता, and we won't be able to give auditions and prove our worth that we are here. Hey. बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए. So I feel really blessed, and I'm really happy that a lot of doors which has opened for me after Kill. But is it true that Mr. Umesh Bish, the director of Gyara Gyara, correct? Yeah. He took about 120 auditions before finalizing you. I mean, like many actors auditioned for the part. That was for Kill. That was for Kill. Yeah, that was for Kill. Guneet had said this in Toronto. We took hundreds of audition, and Raghav stood out. I think this was her statement. And so she said this, and it was true. They were really auditioning a lot of actors. A really big name also said no to that part, which I cannot reveal right now. But then वही होता है, किसी को नहीं अगर लगता है वो करना, और किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो मेरे लिए वो एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई as an actor to show my skills, and I was the last one to give audition. I was the 100th one, I think. And then the director, सब लोग वो हो गए थे कि नहीं मिल रहा है किसको. Then suddenly they saw my audition, which my director says, and then he got to okay, he was like, okay, I got my at last. This is the one which I love to work with. And the Korean connection. The first movie had this Korean action director, right? Kill. Yeah. And now Gyara Gyara is a remake of Korean series. Adaptation. It is an adaptation. Yeah, adaptation. Okay. Yeah. Adaptation, remake, whatever. Yeah, adaptation. Of a Korean series, Signal. So do you see a karmic connection between you and Korea? And also, how much of fan you are of K-dramas, which are hugely popular in India? I'm not such a big fan of K-dramas, but I have seen some world cinema. I've seen some Korean films, though. I've seen some Korean films, especially like the director. I forgot. How can I forgot his? The one who made Parasite and all of these films, right? So I've seen the films, but I am not such a great fan of K-drama, which a lot of people say it's very good. I really have to watch Korean K-dramas, but I've watched a lot of films from Korea as international films, and all those festival films. I've watched a lot of them.
या एक कनेक्शन है एंड मुझे लगता है कि उत्तराखंड कोरिया से पास है इसलिए ऐसा हो रहा है। आई एम फ्रॉम और क्या ही कह सकते हैं। आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम उत्तराखंड सो आई डोंट नो या मिस्टर रो वाज देयर मिस्टर रो इज देयर एंड देन फिर एक ये भी हमने अडाप्ट की है के ड्रामा से सो या देयर इज सम कनेक्शन। But at times when everyone is watching OTT and is watching global content, do you think it's a good idea to, adapt or remake something? Yeah, I mean, adaptation is a part of literature since uh, history. I think Yeah. Mahabharat is adapted. कितनी कितनी अडेप्टेशन होगी? 7-8 डायरेक्टर्स ने लेके महाभारत को. I mean, even Peter Brook, the play he does in London, he used to. I don't know if it still goes on, but the way he also has adapted Mahabharat and the way he saw his characters, जो हमारे भगवान थे और वो उनको देखे. हालांकि अगर वो यहाँ करेंगे तो क्या पता से बैन हो जाए, मगर but even Shakespeare, when Shakespeare की कुछ 50 से ऊपर adaptations होगी. Macbeth and I think विशाल भारद्वाज जी ने 2 adaptation की हैं. So adaptation, if it is really original to it is really like if it is individual, rooted and Indianized in a very fresh, बड़ा fresh point of view से, then I love adaptations and this is one of that adaptation कि वो Indianize करके रॉक उत्तराखंड का कल्चर दिखा के एंड कुछ स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स करके, ऑब्वियसली नॉट उनकी बेसिक्स को छेड़े बिना. So I think it's a very intelligent adaptation of that series. And Guneet is there and Karan is there. They know their jobs and they know how. They know that. Yeah. And Gyara, it's a very interesting title. Normally, we tend to make a wish, whenever we see the time 11:11. Is it the same thing here? Well, the same thing for me. No, what is the meaning of the series? See, 11-11, it is an angelic number to these days. People are really doing the like concentrating on it. There was a psychologist, a philosopher called Carl Jung, I think his name was. I was speaking to my director once about it. So it was his concept of synchronicity, synchronized numbers and mathematics, universal patterns and signs. So 11-11 is one of the numbers. अगर आपको अचानक से वो दिख रहा है तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, and it is a positive. And exactly that 11-11 पे मेरा कनेक्शन होता है पास्ट के किसी से, and then I we are solving cases together and then there's a murder and then how that something from past helps us to solve things in the present and then everything is a butterfly effect. It is a mind-boggling series. I love it, and if you watch it, when I read it for the first time, मतलब देखना तो छोड़ो, जब मैंने पढ़ा ही था तो there's a question which arouse in me कि existence है कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं. क्योंकि इसमें बताया हुआ है जो पास्ट है वो तो चला गया है, जो फ्यूचर है वो आया नहीं है, और जो प्रेजेंट है वो जा रहा है कंटिन्यूअसली. जो मैं बोल रहा हूँ जा रहा है, तो है क्या, व्हाट इज इट, एंड उसके ऊपर मर्डर मिस्ट्री. It's crazy, the series. So I'm sorry to say it, like is it about time travel, or again I'm talking of OTT जहाँ पे obviously it's releasing on Z5, right? And on OTT there have been some mind-boggling, rather mind-bending time travel shows like The Dark, and more recently even Bodies was similar, where people from different periods try to solve a murder mystery. So how different is 11-11? How different, as in mystery is a genre, it's a form. एक फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म में इस कहानी का एक तरीका होता है, मिस्ट्री होती है, कुछ कॉमेडी होती है. तो मिस्ट्री एक है, पूरे वर्ल्ड में बनती है मिस्ट्रीज एंड थ्रिलर्स एंड टाइम ट्रैवल पे. बट दिस इज नॉट टाइम ट्रैवल एक्चुअली. It is just
communicating through different times and space. I think this is communication हो रहा है, and because of that communication, lot of things, एक butterfly effect हो रहा है future में basically, and it is different because this is so rooted and so Indianized, and the behaviors of the characters are also so individual, and उसको इतना फ्रेश और ओरिजिनल करके दिखाया है कि वो इंडिया में उत्तराखंड में कहीं हो रहा है तो पीपल वुड लव टू सी कि ओके व्हाट इफ दिस, जिसमें पहाड़ों में जाके हे हो देखा है हमने, उसमें एक ऐसे माइंड बॉबलिंग से टाइम और स्पेस पे क्वेश्चन करने वाली सीरीज जिसमें मिस्ट्री मर्डर सब कुछ है। आई मीन देहरादून में मर्डर वर्डर दिखाना ही ऐसा लगता है कि अरे एक मिनट हुआ होगा मसूरी में, वहां तो घूमने जाते हैं लोग। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इसका एक पार्ट लगा इस सीरीज का। तो आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, you born in Dehradun? Yeah, I'm born in Dehradun, yes. And grew up there. So how was it growing up in Dehradun? It was lovely. It is a retirement. It was a retirement town until now, when a lot of multinational companies are cutting trees and making big tall buildings, and उसकी ब्यूटी पूरी खराब कर रहे हैं। I'm so sorry. I don't think this is political, but this is something which I feel really sad about. So growing up was really cool. I mean, we have picnic cultures like packing sandwiches and paranthas and going to the nadi and the waterfalls and sitting there and having a good time of our life, bonfires, this is my lifestyle. ये है देहरादून का, ऐसा ही कल्चर है। और तो देहरादून में नेचर से ज्यादा कनेक्टेड है वहां पर सब कुछ। तो उस स्लीपी टाउन में इतने बड़े बड़े ग्रैंड एम्बिशंस आपके कि आप डांस रियलिटी शो में जाएंगे, इतने मशहूर डांसर बन जाएंगे, और अब तो आप मतलब मशहूर एक्टर भी बन गए, तो उनका जन्म कैसे और कब हुआ? ऐसे स्लीपी टाउन में वक्त रहता है ना, बंदा निठल्ला रहता है, काम धंधा होता नहीं है उस पे, तो क्या करे, डे ड्रीमिंग करता है वो। तो वो डे ड्रीमिंग से स्टार्ट हुए सारे ड्रीम्स, एंड अब वो मुकम्मल हो रहे हैं बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग ऑन माय ड्रीम्स अ लॉट। सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं होता है, आई रियली पुश माय लिमिट्स। आई हैव अ हैबिट ऑफ पुशिंग माय लिमिट्स इन everything, and sometimes it becomes negative for me because I take a lot of risks everywhere, whether it is physical, social, creative. But sometimes it is a boon for me in my career also, that I have guts to take risks and leave my identity and TV for 5 years and 4.5 years, and then wait and let people forget me, and then come back with great performances and films. So वो मेरा एक तरीका है लाइफ जीने का। And your mother is a Punjabi? My mother is, मैं बहुत मिक्स्ड कल्चर्स में पला बड़ा हूँ। My mother is Punjabi, and my father is Pahadi Garhwali, and that time they were that was वो लव मैरिज थी उस वक्त, तो काफी वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ हुई है उनकी लव मैरिज। और मम्मी मल्होत्रा बख्शी है, और ऐसा पापा गढ़वा, हम लोग जियाल हैं, तो मिक्स हो गया, मिक्स ब्रीड हुए। कितने, how much of a Punjabi are you? I think I'm half Punjabi and half Pahadi. क्या any particular trait of Punjabi in you? I have Patiala pegs. Okay. And I am I think I'm really honest. वो तो पहाड़ी भी होता है। I mean, traits ऐसे कुछ नहीं है, but what I learned from my Punjabi family's roots is that उधर इतना वो नहीं है, मतलब कास्ट सिस्टम, और थोड़ा ओपन सा लगता है मुझे वो कल्चर, और बहुत थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मुझे लगा। एंड बिकॉज आई हैव बीन इन बोथ द वर्ल्ड्स, एंड बहुत थोड़ा सा वो लगा, एंड थोड़ा यूनिटी बहुत अच्छी रहती है पंजाब में, कि अगर एक बंदा जा रहा है कनाडा तो वो पूरे टब्बर को लेके जाता है,
वो मुझे बहुत पसंद आता है कि एक दूसरे का साथ बहुत, कम्युनिटी में बहुत वो है, एक ही कम्युनिटी में चिढ़ नहीं है एक दूसरे से, या ये तो छोटी जात वाला है, ये बड़ी जात वाला है, ये सब जो मुझे डिफरेंट लगा। और उत्तराखंड में मुझे अच्छा लगा, दे आर वेरी टफ एंड रूटेड, एंड बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्ट कंडीशंस, और लिविंग डिफिकल्ट कंडीशंस है, कभी बर्फ गिर रही है, कभी पहाड़ गिर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी सिक्योर। वो थोड़े हैं कि बिकॉज हमारे पास इतना है, हमें बचा के रखना है, या फिर हमें, दैट्स व्हाई मैंने, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशंस एंड द, और पंजाब में भाई खेत भी फुल है, दूध घी दही, किसी चीज की कमी नहीं है, लैंड फुल है, तो इसीलिए मेरे को लगता है वो बहुत ज्योग्राफी से आया है वो, और उन्होंने बहुत चीज ऐसे देखी भी। एंड फॉर गढ़वाल एंड उत्तराखंड एवरीथिंग इज सो स्कार्स समटाइम्स। बर्फ गिर जाएगी तो पानी बचा के रखो, हाँ ठंड लग जाएगी, अच्छा बाघ आ जाएगा तो बच्चों को अंदर रखो क्योंकि टाइगर आ जाएगा। सो दैट्स कुछ कुछ चीजें ज्योग्राफी से मेरे को ऐसा महसूस हुई है कि बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी एंड दोज, राइट। इसलिए वो डिफरेंस है। तो एंड विच इज आप में एंड फॉर बैलेंस आ गया एंड होगा। पहाड़ों में, और पहाड़ों में काफी चीजें रिचुअलिस्टिक होती हैं, जैसे किसी को गॉड्स आते हैं तो वो एक अलग ढोल ढमा बजता है, विच इज वेरी ट्राइबल एंड रिचुअलिस्टिक। इट इज मोर ट्राइब टुवर्ड्स द ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स एंड ट्राइबल साइड, एंड पंजाब इज मोर प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स। सो ये डिफरेंस मुझे बड़ा, एंड विच इज अमेजिंग, आई हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वो लेकिन पंजाबियों को तो बहुत आदत होती है उड़ाने की, उनको सेव करने की, तो आपके अंदर बैलेंस आ गया होगा। मेरा मेरा बस, मेरा यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक 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 साइड जो है वो उड़ाना चाहती है, एक साइड जो है सेव करना चाहती है, तो ये दोनों गढ़वाली और पंजाबी मिले हुए हैं अभी। बट आई थिंक आई बिलीव, आई थोड़े एम्बिशियस एम्बिशियस जो पन है मेरा, वो पंजाबी से आया है। बिकॉज जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो अगर 40 रुपीज कमा रहे हैं तो 41 के लिए उनको वो रिलैक्स थोड़ा है माहौल। लाइक माई फादर इज अ टोटल, ही एज ओवर एम्बिशियस नहीं, जितना है जितनी चादर है उतने रखने चाहिए। एंड माई मदर इज ऑब्वियसली फ्रॉम पंजाबी साइड, एंड शी सेड नो, जस्ट पुश योर लिमिट्स एंड गो वेयर। माई फादर इज चिल्ड, एक चाय मिल जाए, दो चाय मिल जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, नदी में जाएंगे। तो वो दोनों वर्ल्ड्स देखे हैं मैंने। तो आपने ये कहा कि भाई people see success and they don't see the hard work behind it. So Yeah. but you have been, you've tasted success, from dance reality shows. uh, how much has that dance stint helped you? वो उससे आपको एक्टिंग में कितना फायदा हुआ? किल के अंदर तो obviously that, even the director said that you have that, rhythm which translates into action. मुझे नहीं पता लगता है ऐसा कुछ फायदा, मुझे कॉन्शियसली नहीं पता लगता है, सबकॉन्शियसली कुछ होता होगा, हाँ बिकॉज आई एम वेरी रियली अवेयर ऑफ माई बॉडी, एंड दैट्स वो सबसे मेन काम होता है एक्टर का, टू बी अवेयरनेस, टू बी अवेयर एंड टू बी लेस सेल्फ कॉन्शियस एंड बी सेल्फ अवेयर बेसिकली। तो वो में एक होता है, तो वो सबकॉन्शियसली मैं ऐसा ही हूँ। एंड इफ यू रियली एंजॉय एन आर्ट फॉर्म, लाइक जो मैंने इतने साल एक क्राफ्ट को दिए हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है ऑन स्टेज, एंड आई हैव रियली रेड एंड अपने अपनी ट्रेनिंग की है, वर्ल्ड डांसेस देखे हैं, वर्ल्ड आर्टिस्ट से मिला हूँ, एक्सपोज हुआ हूँ, इवन इन थिएटर फील्ड, एंड इवन विद बुक्स। तो मुझे ऐसा होता है कि अगर एक आर्ट फॉर्म में आप बहुत ही एक्सेलेंस पे जाना चाहते हैं, तो इफ वो ही एक बेसिस रहता है दूसरे आर्ट फॉर्म में भी, जो मैंने अभी शिफ्ट लिया है एक्टिंग में, इतने सालों से मैं कर भी रहा हूँ ट्रेनिंग। तो मुझे एक चीज, मैं इस तरीके का हूं कि मुझे अपना जो बेसिस है, जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, वो क्राफ्ट ड्रिवन रखनी है। क्राफ्ट कैन नॉट बी अ साइड एंड माई पॉपुलैरिटी एंड फॉलोअर्स उसके चल रहा है, दैट कैन नॉट, दैट हैज टू बी द बेसिस एंड द मेन व्हाट यू कॉल बेस ऑफ एवरीथिंग। तो वो मैं उस मेंटालिटी से आता हूँ शुरू से, बिकॉज जब मुझे सक्सेस मिला था तब ऑर्कुट था, तब इतना इंटरनेट का वो भपका भी नहीं था, एंड देयर यूज्ड टू बी, इतना एक्सपोजर नहीं था, एंड एक सेलिब्रिटी होना, एक सेलिब्रिटी होता था देहरादून में कि भाई एक ही है, मतलब वो एक बड़ी मुश्किल से बनते थे। बट नाउ इट्स अच्छा भी है कि हर चीज और कुछ भी चीज हो जाती है कभी कभी ट्रेंड,
बट कभी कभी अच्छा कंटेंट इसमें पीछे भी रह जाता है, और अच्छे आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बीच में जैसे एक चलन चला था कि फॉलोअर्स से कास्टिंग हो रही थी, तो जो दिग्गज जो एक्टर इतने सालों से अपना काम करके आए हैं और अपनी क्राफ्ट पे काम करके आए हैं, कहीं वो पीछे ना छूट जाए, उसका मुझे डर था बीच में। बिकॉज इट इज अ वेरी किम Kardashian वर्ल्ड वी लिव इन दीज डेज, बिकॉज यू जस्ट फेमस, यू डोंट नो फॉर व्हाट, यू जस्ट फेमस। हाँ सॉरी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं हाँ, लगा और कैसे करेक्ट रखूं करेक्ट। मैं। सो अगर मुझे कुछ साल बाद मेरे पोते पोती मुझसे पूछेंगे कि दादाजी आपके टाइम में क्या आर्ट एंड कल्चर था, तो मैं कुछ बता पाऊं उन्हें। क्योंकि मैं जब अपने दादाजी से पूछता था कि दादाजी व्हाट वाज, तो उन्होंने कहा था हमारे तो मैं साहिर लुधियानवी को बहुत पढ़ता था, इस्मत आपा की कहानियां पढ़ता था, यू नो दे हैड दोस रिच एंड आर्ट एंड कल्चर imbibed in those days. And now if I someone my pota poti will ask after few years, दादा आपके में क्या आर्ट एंड कल्चर था, तो मैं कच्चा बादाम करके तो दिखाऊंगा नहीं उन्हें। बेसिकली आई नीड टू शो देम, एंड ऐसी चीजें दिखानी है जो उस वक्त थी। तो मुझे बड़ा कभी कभी लगता है, बट नाउ बिकॉज कंटेंट इज द किंग, एंड नाउ ग्रेट फिल्म्स एंड सिनेमा एंड गुड आर्टिस्ट्स आर गेटिंग चांस, आई फील रियली हैप्पी कि 12th फेल, लापता लेडीज एंड इवन किल, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी हम लोग ऑडियंस ने बचाया, और ऑडियंस ने इसको प्यार दिया, एंड वर्ड ऑफ माउथ होता है, एंड ऑडियंस इज द किंग एंड कंटेंट इज द किंग, व्हिच आई एम हैप्पी। एक तो सवाल मेरा ये कि व्हाट इज योर टेक ऑन रियलिटी शोज सिंस यू बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑफ देम, और दूसरा ये कि बहुत कम जो रियलिटी शो विनर्स होते हैं वो कहीं आगे, आई मीन वी कैन नेम, उनका हम हाथों पे गिन सकते हैं जिन जिन ने कुछ सक्सेस पाई है, तो उसका सीक्रेट क्या है कि आप उसके मतलब यू हैव बिकम सो सक्सेसफुल? Just being aware of your comfort zones, and being aware कि ओ तेरी अब मैं comfortable हो गया हूँ. The day you are comfortable, the day you stop thinking, the day you become less of a thinker, at that day your growth stops. Because एक बड़ा बड़ी माया नगरी है कि अचानक से रियलिटी शो में आप आते हैं, 2 महीने में आपको स्टार बना देते हैं वो लोग, मतलब हर घर घर में, एंड यू थिंक दैट यू हैव अराइव्ड, एंड नाउ यू हैव घर है, गाड़ी है, यू नो अब अच्छा पैसा मिल रहा है ना, देन यू बिकम लिटिल कंफर्टेबल, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई हैव नेवर बिकम कंफर्टेबल, which is, I don't know, good point or a bad point. नहीं, बड़ा जरूरी है टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। या तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे अजीब लगता है टू स्टॉप लर्निंग। आई एम अ लर्नर। मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि मैं अभी क्या पता इसके बाद कुछ नया कारपेंट्री सीखूं या फार्मिंग सीखूं। आई रियली नीड टू, yes, I need to do these weird stuff. That's why I'm an artist. I know I daydream and I do things, and I want to go out of my comfort zone and try new things and give auditions and get rejected and feel all of those emotions and everything. And yeah, that's what it ये is, how फ्यूचर I की am. बात कर रहे हैं आप, इज इट ट्रू कि आप शाहरुख खान की वेब सीरीज जो आर्यन खान डायरेक्ट कर रहे हैं उसका हिस्सा है? ये क्यों फैला हुआ है? हाँ? ये सब मुझसे यही पूछ रहे हैं. तो Everyone is asking me this, and really, I don't. He's a very good friend of mine, Aryan, and मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. शायद इस वजह से एक दो बार, 3-4 बार मुझे उसके साथ देख लिया होगा किसी ने, and they think like that. But I right now nothing. I really want to do that, and I'm ready to give auditions for that. And but ऐसा है नहीं. क्या पता मुझे बुला लें, कॉल कर लें. अच्छा, तो फ्यूचर में कहाँ और देखेंगे आपको 11-11 के अलावा? एक फिल्म है एक्सेल की, फरहान साहब एंड रितेश भाई की. रवि उद्यावर सर ने डायरेक्ट की है वो, जिसने मॉम डायरेक्ट की थी. मैं, सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका हैं उस फिल्म में, एंड इट इज बहुत इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्शन है उस फिल्म में. तो वो मुझे अब आएगी नेक्स्ट, वो है आफ्टर 11-11. और तो बस आखिरी सवाल की that's a theatrical थिएट्रिकल release. आउटिंग। Yes. तो मुझे अच्छा विशिंग लगता यू है ऑल थिएटर द में लक जाना. फॉर दैट, बट थैंक यू. आखिरी सवाल है कि इतना सारा कंटेंट है इस समय ओटीटी पे, तो जैसे कि हमने बात करी कि बहुत इस तरह के सब्जेक्ट पे भी कुछ फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं, तो लोग, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके अब बहुत सारे फैंस भी बन गए हैं,
वो 11-11 क्यों देखे? यार अभी ना वो वक्त चला गया है कि मैं बोलूं फैंस को कि यार आपने मुझे किल में बहुत प्यार दिया, मैं चाहता हूँ आप मुझे सीरीज में भी प्यार दो। उन्हें टू बी सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता हम क्या इंटरव्यूज कर रहे हैं, हम कितना प्रमोशन कर रहे हैं। If the series is made good and it connects to the people, they will watch it for sure. That's the power of good. That's the power of cinema and good writing. And I believe in this project because I have read it, I have felt it, and I have emoted it on screen. And I have lifted. I have tried, and all of us have tried to lift the story somewhere above all of us. And वो audience को हमने दिया है. And people will love this. I mean, कंटेंट इज द किंग। दे लोग ढूंढ लेते हैं अपना अच्छा कंटेंट। सो या आई जस्ट से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आई जस्ट से पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। Right. And so with these golden words, we wish you a golden future and hope to have many more conversations with you. And hope we talk about the Aryan Khan project as well. Okay. Thank you, man. Thank you. Thank you so much for your time and all the best.